नमस्कार, बोजूर। फ्रेंच पे गपशप में आपका स्वागत है। स्वागत की फ्रेंच है बिenvenue। मैं डॉक्टर अजय साहनी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नंबर्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेज ऑफ द वीक एंड सम बेसिक एक्सप्रेशंस। और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे पिछले कुछ चीज़ों की, साथ ही साथ वो भी रिवीजन करेंगे। इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ कि मैं गपशप जो इसमें नाम रखा है चैनल का, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल गपशप लाइक भाई तूने कौन सा खाना खाया, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा, ये फिल्म वो फिल्म, तेरा मोबाइल फ़ोन, वो कार कौन सी आ रही है। नो, गपशप इज़ जस्ट कोलोकियल एक्सप्रेशन। दैट मीन्स हम लोग फ्रेंच तो पढ़ेंगे, साथ ही साथ लाइफ स्किल्स की बातें करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, एंड मैनी अदर थिंग्स like motivation and inspiration. Like today I am going to talk about law of incremental growth. अगर आप नोट करोगे, मैंने बहुत एक मॉडेस्ट बिगनिंग से ये चैनल शुरू किया, और जो मेरे पास कोई अभी हाईटेक कैमराज और ये सब नहीं है, बट वट एवर रिसोर्सेज आई हैव, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो लाइक दैट. एंड what is meant by law of incremental growth is you just be action oriented, और डेली बेसिस पे आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ वेरी जाइगेंटिक प्रोजेक्ट. सो डेली बेसिस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करते चल रहे हैं. एंड जस्ट टू टेक इट फर्दर, जब मैंने फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ानी शुरू करी भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च न्यू दिल्ली कैंपस में, दैट यूज्ड टू बी माय वेरी वेरी मेन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जहाँ मैंने फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट शुरू किया. एंड पिछले 11 साल से अब मैं फुल टाइम फैकल्टी हूँ भारतीय विद्यापीठ में, और मेरी एसोसिएशन भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साथ 2005 से है. सो दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन मी lot of things, lot of platforms to perform my talent skill other than French language as well. Okay, bienvenue, French pe gupshup. Today's lesson is going to talk about the basic expression again, continued, and numbers from 11 to 20, of course with the revision of the previous numbers, days of the week as well, and French vowels. So हम लोग start करते हैं. Bonjour monsieur. Now, monsieur in short form is written as M then dot. Now, I'm not going to write it as, say it as Monsieur Sahani. Of course, that's what I'm going to say it about. मैं M Sahani नहीं बोलूँगा. It's like अगर मैं Mr. Sahani बोलना चाहता हूँ, तो I won't say MR Sahani. I'll say Mr. Sahani. So I'll say Monsieur Sahani. Bonsoir, Madame. The short form of Madame is this. So I'll say it as Madame Sahani. Now we have mademoiselle. Mademoiselle is written in French sound. I am writing for you. Mademoiselle. Mademoiselle. And in short form you write as M-A-L-L-A. So you remember these are French alphabets. So Mademoiselle Sahani, that means unmarried lady or a girl. So bonne nuit, we know that's good night. Then we have merci, we know thank you. Salut, au revoir. Then je m'appelle Ajay, and I spell this as A-J-A-Y. Now आज हम आपको एक और नया एक्सप्रेशन दे रहे हैं. I'm going to talk about a new expression. This is comment vous appelez-vous. Now the sound of this en is going to be within the scale of a or on, and last alphabet in French is silent. So we are going to talk about those rules later on. So comment vous appelez-vous, iska matlab hai what is your name, and my answer will be je m'appelle Ajay. Then I have another expression, j'habite à Rohini à Delhi. I live in Rohini in Delhi. Suppose आप जनकपुरी में रहते हो, so you will say j'habite à Janakpuri à Delhi. Then if you want to ask where do you live, you will say où habitez-vous. Now the rule in French is whenever you have OU, the sound of OU is always OU. The sound of EZ is always A.
सो जैसे जैसे मैं आपके साथ साथ बढ़ता जाऊंगा, आगे पढ़ाता जाऊंगा, सो मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स और साउंड्स एक एक करके बताता जाऊंगा. ऑफ कोर्स अभी हमारा लॉजिक और मेन रीजन है बेसिक एक्सप्रेशंस सीखने का. सो आई रिपीट वंस अगेन. ऊ आबिते वू, j'habite रोहिणी दिल्ली. Comment vous appelez-vous? What's your name? Je m'appelle Ajay. Then you have another expression. It's comment or comment. En has to be within the scale of a or on. And then the rule is, जैसे T हमारा silent था, but next word begins with a vowel. So ये दोनों साउंड्स कनेक्ट हो जाएंगी एंड यू विल हैव द साउंड ऑफ टी एज त, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था. सो दीज आर टुगेदर प्रोनाउंस्ड एज वन वर्ड. सो आई विल से इट एज कोमा तालेवू. दिस मीन्स हाउ आर यू. आंसर ऑफ दिस इज जुए. रिमेंबर, ये आपने दोनों वर्ड्स इकट्ठे बोलने हैं. इसके पीछे रीजन है AI की जो साउंड है, that is always A. So jouer bien. The sound of En is, as we know, A or O, and the sound of vowel I is E. So I will say bien, merci, jouer bien, merci, I'm fine, thank you. इसके बाद हम चलते हैं days of the week पे. So this is lundi. This is mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. So Monday is lundi. Now suppose I want to say what is the day today. The sound of that will be quel jour est. इस पूरे का मतलब है what is the day today. And क्योंकि ये मैंने लेसन कल बनाया था, so today is Sunday. Now what is Sunday? It's dimanche. So I will say dimanche. कल सैटरडे था तो इसलिए मैंने लिखा samedi. So it's so easy. आप ये वाले कॉन्सेप्ट से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. फ्रेंच वॉवल्स जो हैं वो ही हैं जो इंग्लिश के हैं, AEIOU, बट उनकी साउंड डिफरेंट है. दैट इज आ, ई, ओ, यू. और मजे की बात यह है जो फ्रेंच वॉवल्स के नाम है वो ही उनकी साउंड भी है. जैसे हमने लो दी बोला मंडे, द साउंड ऑफ आई इज ई. सो आपने जस्ट इनको अप्लाई करते जाना है एंड यू पिक अप फ्रेंच लाइक दिस. आगे चलते हैं. लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट द नंबर्स. मैंने साउंड्स लिख के दिए थे आपको, आज मैं उनके स्पेलिंग्स दे रहा हूं. इट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. साउंड्स मैंने आपको दी हुई हैं, आप उन्हीं से मैच करते हुए अपने नोट्स बनाते जाइए. 11 to 20 की फ्रेंच मैंने यहां पर लिखी है और यहां पर इनकी साउंड है नीचे. सो 11 के स्पेलिंग्स हैं ONZE. फ्रेंच अल्फाबेट्स मैंने आपको कराए हुए हैं. सो इट इज 11, 12, 13, 14, 15, 16. सो स्टेप 1 आपका नंबर्स का हो गया. आपको 0 to 10 याद करना है. देन यू हैव टू लर्न 11 to 16. 17 to 19 is step 3. Now 17 in French is, अगर आप देखो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है 10-7. So that means 10 is this and 7 is set. So you will say set. Similarly हमारा 18 हो जाएगा 10-8. So you will say sweet. 10 is this, 8 is wheat, becomes these wheat. 19 is 10-9. So these nuff. And 20 has a very typical sound again. It's vin or vin. बिन इसी स्केल में, because फ्रेंच के अलग अलग एक्सेंट्स हैं. एंड इफ यू गो इवन इन फ्रांस यू हैव नॉर्दर्न एक्सेंट. नॉर्थ फ्रांस में डिफरेंट एक्सेंट है, साउथ में डिफरेंट है, ईस्ट फ्रांस में डिफरेंट है, वेस्ट फ्रांस में डिफरेंट है. सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंच इज स्पोकन इन ऑलमोस्ट मोर देन 50 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड.
So you have Canadian French, you have Indian French, you have French the way it is spoken in Mauritius, that's called Creole. You have Swiss French, you have French of course. Luxembourg में अलग तरह का एक्सेंट है, बेल्जियम में अलग तरह का है, टेक्सास यूएसए में अलग से है, अफ्रीकन कंट्रीज में अलग से है. सो एक्सेंट कीप ऑन चेंजिंग, बट वी आर really focusing upon the classic French accent, like you have British English. और अगर आपको British English आती है, so you can very well improvise it towards American English, Canadian English, Australian English, Indian English, and so many other dialects. Similarly, we are focused more on classic French, and rest on you keep on learning. जब आप उसको use करते हो नेटिव फ्रेंच एक्सप्रेशन में, आप नेटिव फ्रेंच लोगों के साथ रहते हो. सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट द नंबर्स फ्रॉम 11 to 20, साइमल्टेनियसली रिवाइजिंग द प्रीवियस नंबर्स वी टॉक्ड अबाउट. हम लोगों ने साथ ही साथ वॉवल्स के साउंड्स भी किए, डेज ऑफ द वीक भी किए, और बेसिक एक्सप्रेशंस como vous appelez-vous, what's your name, où habitez-vous, where do you live, या बीता कैसे अपना नाम बताना है, पूछना है, हाउ आर यू, comment allez-vous, je vais bien, दिस इज फॉर्मल एक्सप्रेशन. सो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, एंड दीज लेसन्स आर नॉट really a supplement for, it's a kind of, I would say, add on to your books. सो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग नेट से डाउनलोड कर सकते हो. माई ऑब्जेक्टिव इज कि मैं आपको हर तरह से कनेक्ट करके फ्रेंच स्पोकन में लेके आऊँ. सो दिस इज डॉक्टर अजय साहनी signing off, and have a wonderful French learning experience. Au revoir.